Okay, let us discuss now the last section of thermodynamics, which is heat transfer. Basically, this section covers thermal properties of matter. That is the last section, in fact, in which we have heat transfer, part 1, and part 2 will involve the principle of calorimetry also. That is optional, basically. Main part is on heat transfer. Okay, now there are three different modes of transfer of heat. The first is conduction, second is convection, and the third is radiation. ये तीनों प्रोसेस आपने पहले भी पढ़े हुए हैं in your previous classes, right? In conduction, what happens that because of the temperature difference in a solid body, heat is conducted from one part to another. The molecules, they collide with one another, pass on the energy to the neighboring molecules without leaving their actual positions, right? In convection, you see convection currents are set up. This is liquids and gases. In these, convection is usually pronounced, predominant. Then radiation, it doesn't need any medium, any matter for heat transfer, and it is the fastest mode of transfer of heat, like light reaching us on the surface of earth and heating an object is by process of radiation only, right? So first of all, we'll be discussing conduction. So in this mode of transfer of heat, the energy flows between two parts of a body. Because of the temperature difference between them, the energy is transferred because of the molecular collisions without any transfer of matter. ठीक है, इसमें मैटर जो है वो itself, molecules itself move नहीं करते. Convection में molecules itself move कर जाते हैं. ठीक है, experimentally it is observed. Now what we do is we take a cylindrical rod of length L, area of cross section A, and the two ends are maintained at temperatures T1 and T2. So while we discuss this part, we are concentrating on unidirectional flow. मतलब ये part जो है, this is insulated. We have an insulation here. This part is insulated. This is insulation, so that radial direction में कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो सकता. यूनिडायरेक्शनल है. जो आपका नॉर्मल, जो भी आपका क्रॉस सेक्शन होगा उसके नॉर्मल मेरे पास हीट फ्लो होगा. ठीक है. सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट is directly proportional to the area of cross section and to the temperature difference between the two ends of the rod, and is inversely proportional to the length of the rod. ठीक है. That is Q by T is basically K A T1 minus T2 over L. यहाँ पे जो K है, K हमने कई जगह यूज किया है, लेकिन यहाँ पे जो K है, it denotes the coefficient of thermal conductivity, a constant of proportionality. ठीक है. सो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमने ये फॉर्मूला कास्ट कर दिया, where K is a constant of proportionality which is termed as coefficient of thermal conductivity, and it's basically it will have a large value for good conductors and will have a weak value, low value for weak or poor conductors of heat. ठीक है. तो इसको हम जो है इस तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं. क्योंकि हमने ये फॉर्मूला बना लिया. ठीक है. Q by T, that is rate of flow of heat, is equal to K A T1 minus T2 over L, where L is the length. K is termed as, it is a constant of proportionality and is termed as coefficient of thermal conductivity. ठीक है. For good conductors of heat, for good conductors of heat, K is large.
for poor conductors of heat, for poor conductors of heat, K is small. ठीक है, अब कितना लार्ज कितना स्मॉल, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर मेटल्स लाइक सिल्वर कॉपर इज अराउंड 400. फॉर एग्जांपल फॉर सिल्वर which is a metal, for copper, for silver it is 406, for copper it is 385. अब इसके यूनिट्स बनाने हैं हमने, तो यूनिट्स हमारे पास ये Q क्या है इसमें, एनर्जी, हीट एनर्जी, T टाइम, तो ये एक तरह से जूल पर सेकंड बन गया. ठीक है, आगे आप देख सकते हो जूल पर सेकंड वॉट होता है. ठीक है, और यहाँ पे पर मीटर पर केल्विन, सो इट इज वॉट पर मीटर पर केल्विन. यहां से ये एरिया है, लेंथ स्क्वायर लेंथ से कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा. तो ये आपके पास एसआई सिस्टम में इसके यूनिट्स बन गए, वॉट मीटर पर केल्विन या जूल मीटर पर सेकंड पर केल्विन. ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, पर मीटर सॉरी, वॉट पर मीटर केल्विन, पर मीटर केल्विन. क्यों? क्योंकि दोनों यहां से ये एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, ये लोग कटिंग होके 1 मीटर हो गया, एक यहाँ पे टेम्परेचर का केल्विन वो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है. सो यू कैन हैव दिस और जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है. सिल्वर कॉपर दोनों के लिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं, 406 वॉट पर मीटर पर केल्विन. ठीक है, दिस इज फॉर सिल्वर एंड फॉर कॉपर. सिमिलरली अगर हमें एग्जांपल लेनी हो, जैसे वुड है, इट इज जस्ट 0.12, वाटर जस्ट 0.8. इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ वुड, इट इज 0.12, वाटर लिक्विड 0.8. वही यूनिट्स तो वही चलेंगे, वॉट पर मीटर पर केल्विन. सो यू कैन सी कि इनकी वैल्यूज काफी कम है रिलेटिव टू मेटल्स. ठीक है, सो मेटल्स का सबसे ज्यादा के होता है, सॉलिड्स इन जनरल विल हैव लार्जर वैल्यू फॉर के, लेकिन सॉलिड्स में भी मेटल सबसे ज्यादा है, क्योंकि वुड भी तो सॉलिड ही है. लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं है. बेसिकली गुड कंडक्टर्स विल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ के, फॉर एग्जांपल मेटल्स, एंड poor conductors of heat like wood, they will have very low value of K. So liquid की भी हमने एग्जांपल ले ली, गैसेस की एग्जांपल भी ले सकते हैं. गैसेस में हमारे पास और भी कम होता है. ठीक है, फॉर एयर फॉर एग्जांपल इट इज 0.024, फॉर एयर इट इज 0.024 वॉट पर मीटर पर केल्विन. ठीक है, तो इस तरह से ये K कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है. इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विद द यूनिट्स वॉट पर मीटर पर केल्विन. नेचुरली यहां से हम डायमेंशनल फार्मूला भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. डायमेंशनल फार्मूला इफ आई नीड इट, वो होगा ml² T-2 ओवर T. ठीक है, L एंड केल्विन K. यहां पे ये नया इंट्रोड्यूस हो गया, ml T-3 K-1. ठीक है, ml_T-3 एक तरह से वो पावर हो जाती है जो, ठीक है ना आपकी, तो mt-3 होती है. वैसे ml² T-2 ओवर दिस, ml² T-3 पावर होती है, लेकिन l एक l नीचे है तो ml रह जाएगा. ठीक है, और K-1, K स्टैंड्स फॉर केल्विन है. ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया हमारे पास. राइट, हियर हम इसको लेबल कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज को, जस्ट फॉर इन केस. दिस इज हीट फ्लोइंग, क्योंकि हीट फ्लो करती है ना इसमें. दिस इज टाइम, दिस इज बेसिकली हीट एनर्जी, राइट. दिस इज लेंथ, एंड दिस वी ऑलरेडी शोन. माइंड इट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
दिस इज हायर टेम्परेचर, दिस इज लोअर टेम्परेचर। तो हमेशा हीट ने फ्लो करना है नॉर्मल टू द सेक्शन, ये हमेशा याद रखना आपने, ठीक है। नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन आपकी हीट हमेशा फ्लो करेगी, ऑलवेज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पे, इफ आई कैन टेक एन एग्जांपल हियर आल्सो, ये जैसे एक डस्टर है, ठीक है। अगर डस्टर का ये पार्ट मैं ले रहा हूं तो ये और ऐसे हीट फ्लो कर रही है तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। लेकिन अगर हीट ऐसे फ्लो करवानी है तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये लेंथ होगी। पिछले केस में अगर इस केस ऐसे हीट फ्लो करवानी है नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो लेना होता है। इसमें लेंथ ये हो जाएगी जस्ट दिस पार्ट, और ये पूरा फेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। K is coefficient of thermal conductivity, right? Now this particular formula is quite important क्योंकि इससे हमें हीट फ्लो का, जैसे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग से जैसे आपकी विंडोज हैं, तो विंडो में से कितनी हीट पास होने वाली है, ठीक है, वो सब आइडियाज हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आगे तो इसमें हमारे पास पिक्चर में आ रहा है वो है इसी फॉर्मूले की आगे फर्दर एप्लीकेशन, ठीक है। सो अच्छा, एक इसमें हमने और डिस्कस किया था टर्म स्टेडी स्टेट कंडीशंस। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस। द अबव फॉर्मूला is applicable under steady state conditions, ठीक है। steady state conditions mean that flow rate at any section, flow rate किसका, हीट का, heat flow rate at any section is a constant quantity. Heat flow rate at any section is a constant quantity. ठीक है। हीट फ्लो रेट एक तरह से करंट की तरह चलता है, मतलब Q by T। अगर ये स्टेडी स्टेट कंडीशंस है तो किसी भी सेक्शन पे Q by T सेम होगा, ये मतलब है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसी फॉर्मूले को अगर Q by T को मैं IH कह दूं, ठीक है, और KA by L उसको नीचे ले आओ, इसको मैं डेल्टा T कह दूं टेम्परेचर डिफरेंस को, एंड L by KA को RT कह दूं, तो एक तरह से हीट फ्लो करंट की तरह बिहेव करता है, जैसे करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो दिस इज एनालोगस टू ओम्स लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेल्टा टी विल बी बिहेविंग लाइक पोटेंशियल ड्रॉप एंड दिस विल बी थर्मल रेजिस्टेंस, वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, एंड दिस इज हीट करंट। सो हीट करंट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी ओवर आरटी। सारे लॉज हमारे जैसे ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं उस तरह से ये भी एप्लीकेबल है। सो दिस इज अनदर वे टू एक्सप्रेस दिस, ठीक है। दिस इज हीट करंट, दिस इज टेम्परेचर ड्रॉप, एंड दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, सो RT is equals to L by KA, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उस तरह से जैसे वहां पे करंट फ्लो होता है वैसे यहाँ पे हमारे पास हीट फ्लो हो सकती है, ठीक है। सो अगर हम दो बार्स डिफरेंट थर्मल रेजिस्टेंस की कनेक्ट करते हैं और वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसे ही हम वहां यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं इफ इट इज नीडेड, ठीक है ना। वो चलो वो देखेंगे आगे जाके। वैसे वो थ्योरी के अंदर तो नहीं हमारे पास इतना आता वैसे, लेकिन वो कंपटीशन का इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है हमारे पास।
ओके, सो ये हमारे पास एक डिस्कशन होगी। अब हमारा यहाँ पे एक मेन इंटरेस्ट रहता है कि टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस ऑफ टू स्लैब्स, जैसे हमने दो स्लैब की बात करी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस to find the temperature of the interface or boundary separating two slabs. So here we have a situation in which we have this as one slab, this can be treated as another slab. Here temperature is T1, this suppose is maintained at temperature T1, this is maintained at temperature T2, coefficient of thermal conductivity K1, coefficient of thermal conductivity for this slab K2. Let us suppose that their lengths are D1 and D2. Let area of cross section be the same, can be taken as cylindrical slabs. So our interest is to find Tx. Okay, to find वही आ गया, to find Tx under steady state conditions. Steady state conditions. Right. So once the heat starts flowing here, ये मेरे पास एक स्लैब होगी, ये हमारे पास दूसरी स्लैब होगी। तो स्टेडी स्टेट कंडीशंस में कोई भी जो हीट फ्लो हो रही है किसी भी सेक्शन में, Q by T for both the slabs must be equal. Q by T for first slab must be equal to Q by T for the second slab. This is first slab. I can say this is X and this is Y. ठीक है, this is slab X, this is slab Y. So because of steady state conditions, Q by T through section X must be equal to Q by T through section Y. Q by T इस सेक्शन पे क्या बनेगा? ठीक है, इस सेक्शन पे हमारे पास Q by T बन जाएगा by definition K1 A Tx minus higher minus lower, T1 minus Tx, क्योंकि heat is flowing, we are assuming in this manner, तो naturally low temperature पे ही जाना है उसने, over D1. This is equal to K2 A Tx minus T2 over D. ठीक है, यहां से हम रीअरेंजमेंट कर लेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, we'll have K1 D2 T1 minus Tx, this is equals to K2 D1 Tx minus T2. Okay, this is K1 D2, okay, K1 T1 D2 minus K1 D2 Tx is equal to K2 D1 Tx minus K2 T2 D1. रीअरेंज कर लेते हैं, K1 T1 D2 plus K2 T2 D1, this is equals to K1 D2 plus K2 D1 Tx. So Tx is equals to K1 T1 D2 plus K2 T2 D1 over K1 D2 plus K2 D1. तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, दिस पार्ट, ठीक है।
तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस अगर हमें टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फेज चाहिए इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, राइट। ये बेसिकली इसमें हमारे पास इतना ही पार्ट है थ्योरी का। मेन तो स्टेडी स्टेट में हीट ट्रांसफर का ये फॉर्मूला ही दिमाग में आपको रखना है, वहीं से सारे चीजें यहाँ पे डिस्कशन में आती हैं। सो I will take one more example. So I can have a situation like this. Say this is at 0 okay, this is chalo theek hai, this is 0 degree centigrade. Say this is at 60 degree centigrade, ठीक है, and let this be at 30 degree centigrade, ठीक है। 3 identical rods are given. 3 identical rods are given. Find the junction temperature. Find the junction temperature for the arrangement of the rods. For the arrangement of the rods. ठीक है। सो इसमें हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमें पता नहीं है एक्चुअली में कि किस तरह, लेकिन नेचुरली आपके पास हीट इधर से आएगी और इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, ठीक है, राइट। सो हम ऐसे भी कह सकते थे, चलो क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट अस टेक दिस एज 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, that will be more convenient for discussion, right? So naturally high temperature से यहाँ से आपके पास वो कोई फर्क नहीं है, अगर मैं 60 यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ से हीट जाके इधर इधर चली जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास करंट होता था, ठीक है ना, जो भी हीट करंट यहाँ से एंटर होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो प्रोपोर्शन क्या होगा ये नहीं हमें पता, ठीक है। तो वो हम कैसे डिस्कस करेंगे फिर। लेट अस सपोज, क्योंकि हायर से लोअर ही जाना है, एंड लेट अस सपोज हियर द टेम्परेचर इज Tp, ठीक है, बाकी टेम्परेचर हमें पता है। नाउ लेट दिस बी I, दिस विल बी I1 एंड दिस विल बी I2. I stands for heat current here, IH1 IH2, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्यूमुलेट तो होनी नहीं, पास ऑन हो जानी है, तो IH is equals to IH1 plus IH2. This is how heat current flows, right? So IH जैसे I होता था हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है। I जो है H टोटल, ये इस रॉड के लिए क्या बन जाएगा 60 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर Tp ओवर थर्मल रेजिस्टेंस। रॉड्स आर प्योरली आइडेंटिकल, तो मटेरियल भी सेम है और डायमेंशंस भी सेम है, तो थर्मल रेजिस्टेंस होती है L/Ka। L/Ka तीनों का सेम है, तीन आइडेंटिकल का मतलब ये होता है, तो यहां पे मैं R रख दूंगा, ठीक है। आगे TH माइनस 0 ओवर R प्लस TP है, सॉरी TP प्लस TP माइनस 30 ओवर R, क्योंकि तीनों रॉड्स आइडेंटिकल है, ठीक है। यहां से R R R कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकल गया। आई विल बी लेफ्ट विद 60 माइनस TP इज इक्वल्स टू 2TP माइनस 30, ये हो जाएगा 3TP इज इक्वल टू 90, ठीक है। और TP will now be 30 degree centigrade. So this is how you find the junction temperature as 30 degree centigrade, ठीक है। जो हीट करंट था वो मेरे पास यहां से डिवाइड हो गया,
पर डिवाइड होके हमें नहीं पता है वो कितना कितना है, तो हम कहेंगे करंट एंट्रिंग मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग बिकॉज देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ हीट एट पी, इट्स सिंपल कंडक्शन. सो हीट करंट इज इक्वल टू द पार्ट गोइंग टू दिस एंड दिस. तो वो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी. यहां से हम अपनी इक्वेशन पे आपके पास जो है इक्वेशन डेवलप कर लेंगे आगे. टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस. कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, जो मैंने पीछे डेवलप किया फॉर्मूला, तो भाई ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज होता है डेल्टा टी बाय आर टी. ठीक है, तो उस शेप में बना के हमें जो है पी का टेम्परेचर निकाल लिया. ठीक है, दिस इज अगेन एन आइडिया ऑन थर्मल रेजिस्टेंस ओनली. थर्मल रेजिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ बाय के. ज्योमेट्री आती है L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ द मटेरियल व्हिच इज K कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, तो ये पार्ट आपने हीट ट्रांसफर के अंदर हमने पढ़ना था पहले पार्ट में व्हिच इज कंडक्शन. ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें कंडक्शन इंपॉर्टेंट है और रेडिएशन. कन्वेक्शन जस्ट ओरल आइडिया ही है हमारे पास, जो पुराना हमने 10th से सीखा है वही चलेगा. जैसे कन्वेक्शन करंट सेटअप होते हैं, ठीक है, उसमें नथिंग न्यू इज देयर. So the important part is on number 1 conduction and the second we will be discussing on your radiation. ठीक है.